रहे थे बाहर से खा लेते हैं जाके। हाँ। मैंने कहा नहीं अभी मैंने टैक्सेस किया। पैसे बचाओ। मैंने ना ब्लॉग का पर्पस ये सोचा था कि वली भाई को मैं कहूँ कि ये भी अपने YouTube वीडियोस दोबारा बनाना शुरू करें, लेकिन ये बनाता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं ओनली फैंस पे चला जाऊँ। So, I have a situation and a problem. मैं और मेरी wife का एक conflicting opinion है about getting the new camera. So, I'm in the decision between getting either a new Osmo Pocket 4, जिसको आपने देखोगे जिसके ऊपर 2 कैमरे लगे हुए हैं, or we get the Sony FX30 first, which is the cinema style camera. Now, बकौल फिजा के वो कहती है कि मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा aesthetic और नहीं लगती क्योंकि मुझे वो cinema style वाली फील चाहिए. Now, Osmo Pocket 3 मैं बहुत देर के लिए यूज कर रहा हूँ. I've been using this for like over 2.5 years something maybe, and I wouldn't be changing this camera, but at this point इस कैमरे की बैटरी निकल के बाहर आ गई. You see that? ये देखो जरा, ये right, this is what I was talking about. So ये गर्मी में रह के ना इसकी बैटरी फूल के बाहर आ गई पीछे से. I don't know how long this camera is gonna last, but I'm guessing it's not gonna last too long. Although as long as it's working, I think I can wait on my Osmo Pocket 4P and just maybe get her the camera. I'm not gonna get her now. Maybe like 1 to 2 weeks I'm gonna wait. खैर अभी जो भी कैमरा लेना होगा हम उसके डिसीजन को बाद में किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे. Obviously आज तो नहीं ले रहे. आज I'm just starting the vlog a little bit late. I was doing some edits and doing some work, and it's the 1st of August, and the problem with the 1st of every month is that you have to pay people working under you and you have to pay your bills. People who work a 9 to 5 job, उनके लिए पहली तारीख और मिडिल वाली जो मंथ का तारीख होती है बड़ी अच्छी होती है, you know, because money hits in the bank. But for business owners, you know, you have to pay your employees, so it's a different thing. Or you have to pay the expenses of the business and all of that stuff. So I was basically occupied doing that through the morning. ठीक है, अब मुझे टाइम फारिग हुआ तो मैंने कहा ब्लॉग कर लेते हैं because I was just shitting. आज वली भाई से भी मैं सोच रहा हूँ मिलते हैं, जाके थोड़ी गपशप मारते हैं, उनके अपार्टमेंट में रेड मार देते हैं, वली भाई के जाके पूछते हैं क्या हाल चाल चल रहे हैं उनके. You see that what's happening now, like daily vlogging में I have to create opportunities now. If I wasn't daily vlogging right now, I would have been just chilling doing something else. लेकिन it's pushing me to move my body because you know जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना तो आप क्या करते हो, आप procrastinate करना शुरू हो जाता हो बहुत ज्यादा. Like ये नहीं कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, but you know all the things right now for today has been taken care of in a way, and I was thinking like, do I even need to do this vlog? Like why do I need to do this? What's the urgency? There is no urgency. लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं. It's about showing up every day. That's the most important principle. If you can do that in your life, then you can achieve anything great. Now एक और प्रॉब्लम बहुत से लोगों को ये होती है कि यार अगर हम रोज शो अप करेंगे हमें कैसे पता कि हम सही चीज के लिए कर रहे हैं शो अप या नहीं कर रहे. If you believe in your hearts of hearts that this thing that you're showing up for every day has worked for other people, then it's only a matter of time it's gonna work for you. हर किसी का जो पोटेंशियल होता है ना वो डिफरेंट होता है. जरूरी नहीं है कि किसी के लिए चीज कोई जल्दी काम करेगी तो आपके लिए भी जल्दी काम करेगी. You get what I'm saying? Learning curves different होते हैं. कुछ लोगों की luck भी होती है. Obviously luck is a big part as well. But then again, luck only favors those people who show up every day, and that's the point that I'm trying to say. मैं बस सोच रहा हूँ अभी जूते कौन से पहनूं. Basically मैं अपना outfit आपको दिखाना चाह रहा हूँ. I guess I might have to take Fiza somewhere out too. I don't know. वो थोड़ी सी मेरे से नाराज हुई भी थी. कहीं लेके नहीं गया, कुछ किया नहीं है वो फलाना. हालांकि अभी इतना गए हम इधर उधर, लेकिन जब तक वो कहीं लेके जाना बाहर जाके enjoyment नहीं होती ना प्रॉपर, जिसमें outing होगी, खाना पीना होगा, थोड़ी शॉपिंग होगी, तब तक वो लेके जाना नहीं होता. So that's what it is. By the way, peep the outfit today. Sun faded Ralph Lauren shirt. I love this color यार, ये समर के लिए perfect color है. And then these Wrangler Rancher jeans. Well, पूरा outfit इस पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन if you see this, I really like these jeans. But ये Wrangler Ranchers dress pants हैं. The only thing that I don't like about these jeans is the fact that they are 100% polyester, and this is the only thing that I own which is polyester to some extent. But the fact this is polyester, it holds its shape. ये टेढ़ी मेढ़ी गिच मिच नहीं होती, हमेशा क्लीन रहती है, एंड यू नो एक स्ट्रेट सिलुएट में जाती है. बट $50 की ये थी ये सारी. But it looks nice. It looks really nice. And then मेरे अल मशहूर बूट्स जो मैं ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में पहन रहा होता हूँ वो इसके साथ में अपनी वही घड़ी पहनी है जो फिजा ने मुझे गिफ्ट की थी, और साथ वही वाले ग्लासेस. ठीक है. Later. सीन ये था कि मैं वली भाई की तरफ जाने वाला था, लेकिन वली भाई खुद ही आ गया हमारी तरफ. वली भाई कहते हैं उसको मेरे
अच्छा नहीं जरा वली भाई कह रहे उसको मेरे डेली व्लॉग्स ही अच्छे लग रहे हैं। ओए जाने दे, मैं क्यों कह बीच ने कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ वो वाले व्लॉग्स देखने हैं जिसपे तुम फन करो या बस इसमें आइजन आए। यार नहीं यार, असल में बात यह है कि मैं अभी ना टैक्स फाइल करके आ रहा हूँ, जो है ना मुझे अच्छा खासा बिल पड़ गया है। ओहो, तो तू चाह रहे क्या तुझे अब और इन्फॉर्मेशन नहीं कंज्यूम करनी, तुझे बस फन कंज्यूम करना है। सही बात है, मैंने कहा बस यार शुगर वुगर होना चाहिए ब्लॉग में। ऐसा ही है, चलो शुगर लगाते हैं, कोई मसला नहीं यार। मैं अब अकेले कितना ही शुगर लगा लूँ। ऊपर से रोज डेली व्लॉग जब आप करते हो ना, आपको रोज कोई ना कोई आइडिया क्रिएट करना पड़ता है। याद एक जमाने में हम करते भी थे, हम डेली बनाते थे बैक इन 2021 या 22 जब मैं बहुत रेगुलर हो गया था ब्लॉग से। जब मैंने शुगर वाले ब्लॉग होते थे, मैं सोचा था एक हम बोली भी वीडियो बना सकते हैं रिव्यूइंग आवर ओल्ड व्लॉग्स। ये कह रहे थे बाहर से खा लेते हैं जाके। हाँ मैंने कहा नहीं अभी मैंने टैक्सेस किया पैसे बचाओ मैं नहीं यार। वो वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बाहर खाने से, वो तो मसला नहीं है, लेकिन वैसे ही अगर तूने इतनी मजे की कढ़ाई बनाई हुई तो हम वो खा लेते हैं आज तुम्हारी में। बड़ी अच्छी बनी है, जो अच्छी बनाता है हर दफा। लास्ट टाइम मैंने कोई शिकायत तो नहीं की थी जो तू कह रहे इस दफा अच्छी बनी है। असल में अब तू खाना लाता कम है, खा के ज्यादा जाता है यहाँ से। ये बात भी है। अभी इतनी अरे बीत जा वो बैठेगा तो नहीं, वो बीतूंगा नहीं मैं, वो बीतूंगा शरारती बेबी बैठता नहीं है पीछे। वली आता इतना खुश हो जाता है वली को देख के, फॉर सम रीजन उछलने लग जाता है। करतब दिखा रहा है अपने बेसिकली। हाँ अपने करतब दिखा रहा है। ये देखो, अच्छा वो कैमरा कह रहा है सही हुआ है कि नहीं, अब आ गया। कह रहे मुझे देखते जाओ। ओए और क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कैमरे में घुस गया, इधर आ। नहीं बैठेगा। हमारे बड़े होते थे ना, बच्चा ऐसे बेचारा उछल कूद कर रहा होता था, बैठ जाओ जाके सोफे पे। अच्छा नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, वो कितनी परेशान हो गया। किसी रैंडम अंकल को डांट देता था, हाँ पकड़ के डांट देता था बंदा के भाई तू है कौन। उनको ना असल में खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ फ्री की खुशी मिल रही होती थी ना। वो कहते थे यार हमारी जिंदगी इतनी गंदी चल रही है और ये बच्चा देखो बस। वो असल में चाहते कि सिर्फ मेरे जोक्स में हंसे, बाकी जोक्स पे ना मुझे वो चुप करके बैठा रहे रोबोट की तरह। हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड देयर सम पीपल स्टिल लाइक जिनको बच्चे नहीं पसंद, लाइक यू नो देयर सम पीपल आई सी 20s या 30s में है, यू नो और यूं बच्चों से एक हो रही होती है वगैरह आजकल के जमाने में डेफिनेटली। लेकिन हाउ कैन यू नॉट लाइक किड्स, लाइक चहल पहल होती है बच्चों से यार। यहाँ पे जानवरों से ज्यादा लोगों को प्यार है अब तो। आई स्वेयर चीजें एक्सट्रीम पे चली गई हैं कि कुत्ते को मतलब कि इतना प्यार देते हैं जितना बच्चों को नहीं देते। बिल्लियां सही होती हैं लेकिन इतना नहीं होता कि भाई आप अपने लाइक लोगों को ना ज्यादा टेंशन ना फैला किस चीज की होती हैं। वो दूर के मसलों की, क्लाइमेट चेंज की, वो पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। हाँ वो चीजों की जो इनके कंट्रोल में है ही नहीं, जो अपनी पूरी लाइफ एफ हुई हुई है। क्लाइमेट चेंज की परवाह इनको कोई एंटार्क्टिका में कोई फीमेल पेंगुइन्स पे जुल्म हो रहा है तो ऑल डे एवरी डे बाबला क्या है, आप जिस मर्जी कॉज को सपोर्ट कर लें लेकिन जो हेड ऑफ द स्नेक है ना, जिसकी वजह से सारे मसले दुनिया में चल रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करना इम्पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली तो फिर बंदा कहते हैं यार चिल मारो, लाइफ को इतना सीरियस ना लो, यू नो जस्ट डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, जस्ट एंजॉय लाइफ। चलो खाओ पियो ऐश करो, अपने टैक्सेस फाइल करो, बस दैट्स इट। तेरे दिमाग में टैक्सेस ही नहीं जा रहा है। खाओ पियो ऐश करो, साथ टैक्सेस फाइल करो। अच्छी लग रही है इस बात का। नहीं बहुत बड़ा लिंक है यार, अब पता नहीं इतना बड़ा सरप्राइज बिल आ गया मुझे। चल यार कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले लाइफ में। जितने मैंने जॉब पे किए ना उतने मैंने और एक्स्ट्रा पे करने और बस दिमाग में ना ये चीज बैठा के की शादी भी कब्बो के लड़के वालों ने मारुति मांग ली तेरे से। मारुति मांग ली। अबे भाई मेरी बात सुन, सब हो जाता है, ये छोटे मोटे मसले होते हैं दिनों में खत्म हो जाते हैं। आज तेरे दिमाग में रिंग रही है अभी, इसलिए मैंने तेरे साथ बैठ के ब्लॉग बना लिया। मैंने कहा तू टेंशन में होगा। मैंने ना ब्लॉग का पर्पस ये सोचा था कि वली भाई को मैं कहूँ कि ये भी अपने यूट्यूब वीडियोस दोबारा बनाना शुरू करें, लेकिन ये बनाता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं ओनली फैंस पे चला जाऊँ। ओनली फैंस पे ना ओली वीडियोस बना ले, शावर वाली। यार एक क्रिएटर था वो शावर बहुत ज्यादा आ गया यार सही बात है। वो ना शावर वाली वीडियो सिर्फ बनाता था, नहा रहा है बाल्टी से, नहीं बाल्टी शावर वाली वीडियो तो बना रहे और लोग देख रहे हैं उसे। शावर हम भी लेते हैं रोज, बस कैमरा रख दे शावर के पास। कोई ना कोई इसमें खास बात तो होगी। खैर एनीवेज मैं कहने का मतलब ये है कि यार तू जो है ना डिटैच कर ले आउटकम के साथ, जो भी कहेंगे, चाहे तुझे लोग कह रहे हो मस्जिद में जा रहे हैं व्यूज के लिए। ओली कहता है मैंने व्लॉगिंग शुरू की, मैं रमजान में जा रहा था मस्जिद में, तो किसी का कमेंट आ गया मस्जिद में जा रहे व्यूज के लिए। तो ये मेरे ख्याल में कहीं और जाना चाहिए था रमजान में, कोई क्लब में चलाया था, डिस्को में चलाया। हाँ वो ज्यादा सही रहता। तो यार अवाम तो क्रिटिसाइज करती है देख, क्योंकि आसान काम है ना, डजंट टेक मच। उनको लगता है कि क्रिटिसिज्म देने से शायद यू नो बहुत भला कर रहा है दुनिया के करके। यार होता भला क्या है, जब कोई बंदा वीडियो बनाता है ना
तो उसमें 99 चीज़ें होती हैं जो कवर कर लेता है, जिसको जो आपको क्रिटिसिज्म करने का मौका नहीं मिलता, जिसपे मतलब कि उसने एडिटिंग करके ऑडियो भी चेक करनी होती है, वीडियो भी चेक करनी होती है। 99 चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ जो मिसिंग होती है ना, वो लोग पढ़ के कमेंट कर देते हैं। खैर यार, करने दे, क्या फर्क पड़ता है, कमेंट है कौन देख रहा है बैठ के। होता वाला क्या है, लोग एक फिनोमेना होता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम, मतलब कि आप ऊपर छत पे देख रहे हो टाइल्स, ठीक है, उसमें से एक टाइल जो टूटी हुई है ना, आपको वो नजर आती है बेसिकली। कि वीडियो देख रहे होते हैं ना, उसमें आपको एक फ्लॉ जो नजर आ रहा होता है, उसके अलावा कितनी चीजें उनसे सही की होती हैं। See that's the thing, अभी तूने बात की ना फ्लॉ की, इसलिए मैं अपने व्लॉग्स को बिल्कुल एफर्टलेस ऑथेंटिक रख रहा हूँ, इम्परफेक्शन हो उसके अंदर, ताकि जो इम्परफेक्शन लोग पॉइंट आउट भी करना चाह रहे हैं वो नजर भी ना आना। See that's the thing, when everything's too perfect people are bound to find something imperfect। तो मैनेजर आपका हो जाए, 100 चीजें सही की हैं, एक चीज आपने गलत की ना, तो वो जो है ना उसी चीज को 1-on-1 में बताएगी कि या बताएगा। वही बात आती है ना, फिर वो लोग सही रहते हैं जो काम ही नहीं करते। अब आजकल के जमाने में ऐसे लोग रहे नहीं जॉब में इतने, उन्होंने बड़े ठुड्डे मार के निकाल दिए। सही बात, ठुड्डे मार उन्होंने लिटा के ठुड्डे मार के बूट कर दिया उनको टीम से। पहले होता था जॉब पे आप हायर होता है तो कहते यार इतनी सैलरी होगी, कहते नहीं यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बढ़ा दे, कहते हाँ ठीक है थोड़े बढ़ जाएगी, जानी कोई मसला ही नहीं। अब होता है अब थोड़ा सा टफ हो गया काम, स्पेशली न्यू ग्रेजुएट्स के लिए। What would I know? मैं तो 2 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ। I'm self-employed, you know. अक्सर औकात ये होता है कि आपका सीवी तो मैनेजर तक पहुंचता ही नहीं, अनलेस आपने अपने आप को रेशियल माइनॉरिटी और गे बताया। सही बात, हमने सीवी पे यूं पिक्चर लगा दिया बंदा ना यूं करके। चल खाना रख दिया, आजा टेबल पे, आजा, यू नो। अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। चिकन यार कितना मजे का लग रहा है। फिजा ने अभी बनाया हुआ है इस वक्त ये चाइनीज चिकन बनाया हुआ है। यहाँ पे वली की कढ़ाई है, कढ़ाई से ज्यादा तो ये मुझे वो लग रहा है, करेले लग रहे हैं यार पता नहीं, यहाँ की ना चिकन होता है इसमें पानी बहुत ज्यादा होता नहीं, मजाक कर रहा है, सही है, खाना अच्छा है वैसे, ट्राई करके नहीं आई नो। तेरे जो खाने में टेस्ट है ना, असल में बात सारी उसकी है। ये संजू की सीट है, ये संजू की संजू की सीट पे बैठा हूँ, संजू की सीट पे बैठते कोई मसला नहीं है यार। वो तो सबसे बड़ी फ्रॉड फिल्म थी, आई स्वेयर टू गॉड। जितना उस मूवी ने एनेबल किया ना लोगों को, ये पेरेंट्स को, ब्राउन पेरेंट्स को मिसयूज करने के लिए, यू नो, वो बागबान की बात कर रहे हैं हम। किसी ने इतनी अच्छी रील बनाई थी, कहता है जो बाबा है ना बैठ के इसको हराम कर, देखो 1 बजे रात की टाइपिंग आई, इतनी जोर जोर की कर रहा, उन्होंने सुबह काम पे जाना मियाँ बीवी ने, तो पूरा दिन ये बकचोदियां करता रहता है, रात को कॉफी शॉप पे बैठा रहता, कॉफी शॉप पे बैठा रहता है। फिर वो सब छोड़ो, जो गाड़ी वाले को चपेट मारता है ना सलमान खान, तुझे पता है तूने किसको मारा है? यार तुम उसकी गए हो, सेल्समैन हो बेचारा, अपनी जॉब कर रहा है, तुम गए हो, तू पूरा शहर घुमा के गाड़ी ला के कहता है अरे भाई हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है भाई, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। सही बात है, इतना तो वैसे यूएस के अंदर भी सेल्समैन नाइस नहीं होता। हाँ शहर ओ घुमा के भाई लेके कोई भी नहीं। मैंने अपनी दोनों जब गाड़ियां ली हैं, ओ वेल 3 ट्रक तो बेच दिए। खैर मैं टेस्ला लेने गया, फिजा के साथ कितना हमने घुमाया था, उसकी डीलरशिप के ना 1 रोड घुमाई थी, मैंने कहा हाँ भाई ये गाड़ी सही है मैं ले रहा हूँ। कॉर्वेट निकाली, एक चला के चक्कर चौक नहीं, एक ब्लॉक का चक्कर लगा के घुमाया, मैंने कहा हाँ ये गाड़ी में ले रहा हूँ। ट्रक का भी सीधा, और क्या भाई, अब सोच मैं उसको पूरा ह्यूस्टन घुमा के लाता नहीं भाई ये हमारी हैसियत से है। तो सेल्समैन तो मैं हो, तो उसने तो धक्का ही मारा था बेचारे ने, ड्रिफ्टे भी उस पे मार के कहता भाई मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं है। व्हेन यू आर इन सेल्स यू फील दैट कि लाइक यार आप एक कस्टमर के साथ अगर इतना टाइम डाल रहे हो ना, ऑफ कोर्स कस्टमर इज नॉट लायबल टू बाय इट एट द एंड ऑफ द डे, बट यू नो अगर आपने इतना इंटरेस्ट शो कर ही दिया है और आपका दिल कर ही रहा था लेने का, तो अब ले लो, गाड़ी में मसला नहीं है भाई। मैं तो एक बात बताऊं, ट्रूली स्पीकिंग, आइजन जब ये बड़ा होगा ना, आई एम प्रीटी श्योर द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, क्योंकि बहुत सी चीजों को ना डिबंक करके वापस पास्ट में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल की गाड़ियां भी लोगों को नहीं पसंद आ रही, कह रहे यार विंटेज वाली अच्छी थी। एआई की टेक्नोलॉजी से भी लोग तंग आ गए, पीपल आर ट्राइंग टू गो बैक टू द स्लो कंटेंट, बिकॉज़ लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यार हैप्पीनेस वाज नेवर इन दोस थिंग्स। सो मेरी उम्मीद है कि जब तक आइजन बड़ा होगा, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। हाँ काफी ज्यादा चीजें अनलर्न भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें बचपन में बताया जाता है कि पानी के 8 गिलास पीने होते हैं लाजमी सारा दिन में। उससे नुकसान ये होता है कि जब आप ओवर हाइड्रेशन कर लेते हो ना, तो आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो निकल जाते हैं, तो वो भी बैड सीन है। इतना नहीं पीना चाहिए कि पागल ही हो जाए पानी पी। कभी भी पानी की बोतल को चक करके नहीं पूरा पीना चाहिए। लाइक ओनली ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी, सिप्स लेके थोड़ा थोड़ा। मैं दिन की 1-1.5 बोतल पीता हूँ पानी की बस। असल में ना सारा मामला ना अगर तुम कनेक्ट करो ये पैसों के उस पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते थे कि ये गोश्त खाने से बाल गिरते हैं, या फिर गोश्त में ताकत नहीं बेटे शोरबा पियो, शोरबा बहुत बोटियां खाए जाते हैं सारे। ये सारा मामला था ही पैसों के पीछे। अगर हमारा मुल्क थोड़ा अमीर होता ना तो कभी भी ये मिथ्स ना बनती। इन व्हाट वर्ल्ड डू यू थिंक दाल इज बेटर देन आई थिंक रेड मीट को भी इसलिए डिमोनाइज किया जाता है क्योंकि महंगा होता है। एग्जैक्टली कि जी बड़ा गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल ये वो होता है।
अच्छा, बड़े गोश्त के साथ वो नहीं देख रहे कि कितना टन तेल गया उसके अंदर, इतना मोटा नान खा रहे हो, साथ साथ बोतल टिकास रहे हो, सारा ब्लेम गोश्त पे। आपको अंदाजा नहीं होता आपके खाने में कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जांपल जो नान होता है, हर वेबसाइट पे लिखा होता है कि 200 कैलोरी होता है, लेकिन असल में आप देखो उसके वेट के मुताबिक और उसमें कितना ऑयल जाता है, तकरीबन 700 कैलोरीज का होता है सिर्फ खमीरी रोटी। और जो नान होता है रोनी वाला, उसमें तो मेरे ख्याल में 1200 कैलोरीज होती है। लेजेंडरी था, लेकिन वो जो भी है खाया नहीं मैंने बड़े से। बॉयजन के व्लॉग में काफी ज्यादा गप्पे शप्पे हो गए। आज तो मैंने वली भाई के साथ मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रो कराते हैं, वली भाई इधर ही होते हैं। अभी फिर आगे हम और व्लॉग बनाते रहेंगे डेली, जिस तरह मुझे आइडियाज आते जाएंगे वगैरह ना। सब्सक्राइब, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be Let me see gone what with you're it. twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those